Hi everyone, welcome back to Decide Design Sketching Academy. This is your friend, host, mentor Manas, and in this video we'll be discussing about the syllabus of design exams. काफी लोग अभी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, प्लस यूट्यूब में भी कमेंट कर रहे हैं कि मानस डिजाइन एग्जाम्स का सिलेबस क्या है. So I thought since एग्जाम भी पास है and this would be the right moment कि एटलीस्ट क्लियरिटी मिल जाए, तुम लोगों के पास एक चेकलिस्ट अवेलेबल हो कि लाइक ये चीजें हैं जो हमें काइंड ऑफ सिलेबस जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं. ऑल्दो जस्ट इन मॉर्निंग के डिजाइन एग्जाम्स का ऐसा कुछ फिक्स सिलेबस नहीं होता है. कीप इन माइंड डिजाइन एग्जाम इज ओपन एंड वहां पे सब चीजें आ सकता है. So there is no fixed syllabus for design exams, but still from my experience and whatever I gathered from the PYQs, previous question papers, plus कहीं से भी resources मिल रहे हैं उनको gather करके I have made a rough syllabus for you people कि at least इनको तुम follow कर सकते हो based on different exams. So let's try to understand क्या है ये syllabus, starting with our fields. So as you know कि like ये तीन primary exams होते हैं, CEED, UCEED, NID and NIFT. These are the three primary exams that are being conducted in India जहाँ से लोगों का admissions होते हैं. So from these exams वो लोग अपने side से थोड़ा clarification देते हैं, थोड़ा नहीं देते हैं, but to understand it better I have categorized into segments, मतलब section wise मैंने divide किया हुआ है. So starting with the first section, जो लोग वो बोलते हैं like they say like these are the patterns that comes in their exams, वो हो गया first layer. So if I talk about CEED, UCEED, उनका दो पार्ट होता है, part A and part B. And if I talk about NID is open. They don't have such fixed ideology like part A and part B. वो अपने हिसाब से part A and part B decide कर लेता है. कभी कभार part A नहीं देता, कभी कभार देता भी है तो hardly 10 to 20 marks देते हैं. That totally depends. उनके हिसाब से decide करते हैं. So they decide like क्या करना है. And if I talk about NIFT का भी होता है part A, part B, but they don't name it like part A and part B, but rather they name it like GAT and CAT, General Aptitude Test and Creative Aptitude Test. इस तरीके से वो लोग नेमिंग करते हैं इसे. ठीक है, ओके, दिस इज द फर्स्ट लेयर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपर कि लाइक इसके अंदर क्या है, बिकॉज ये सिर्फ पहला लेयर ही है, इसके अंदर भी चीजें हैं हर एक सेक्शन में. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट UCEED का पार्ट है. तो यहाँ पर तीन तरीके के सेक्शन बना करके रखा हुआ है, NAT, MSQ, MCQ. नाउ पीपल हु डोंट नो, NAT इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, वहाँ पे न्यूमेरिकल चीजें रहते हैं. MSQ इज अ सेक्शंस वेयर इट इज मोर लाइक कि तुम्हें चार ऑप्शन देंगे, चारों में चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं. एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल बी देयर इन MSQ इज कैन बी विजुअल सॉल्विंग एंड एनी काइंड ऑफ थिंग, कुछ भी हो सकता है. And MCQ as usual एक ही correct answer होंगे, तो that is what MCQ is. Now if I move to part B के अंदर वैसे तो 5 questions रहते हैं for CEED and 2 questions रहते हैं for UCEED, but you can categorize in two groups, thinking and sketching. Thinking is nothing but design, sketching is nothing but sketching, like human sketching, composition sketching, product sketching. ठीक है, तो वो हो गया part B. Now if I move to NID में ऑल्दो उनका कोई फिक्स ऐसे फिक्स सिलेबस तो नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी फ्रॉम द अर्लियर पैटर्न्स कि वहाँ पे एप्टीट्यूड रहता है एंड स्केचिंग एंड डिजाइन रहता है. सो दिस इज समथिंग व्हाट दे आस्क इन द एग्जाम. इसके अलावा लेट्स मूव टू NIFT. अगर NIFT के बारे में बात करें तो NIFT में GAT, General Aptitude Test, as the name suggests, aptitude based questions रहते हैं. I will explain. I have listed down all this syllabus, like कि हर एक सेक्शन के लिए क्या क्या सिलेबस है, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगा in this video in next few minutes. But try to understand कि like ये सेकेंड लेयर में क्या क्या चीज़ है. General Aptitude Test में it's all about aptitude, and CAT में again जैसे मैंने बोला डिजाइन एंड स्केचिंग जो है. सो ये हो गया तो उनके साइड से जो बोला जाता है हमें जो दिखते हैं. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव डन, व्हाट DISA हैव डन एंड व्हाट आई हैव डन इज एक्सट्रैक्टेड 3 सेगमेंट. सो बेसिकली यहाँ से हम 3 सेगमेंट ही उठा सकते हैं, या फिर 3 सेगमेंट बोल सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए हमें इन 3 चीजों का तैयारी करना है. अगर ये 3 चीजें हम कैटेगराइज करके तैयारी कर रहे हैं, काइंड ऑफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन कि आखिर ये 3 कैटेगराइजेशन है क्या. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कैटेगराइजेशन, CEED, UCEED part. This is the first category जहाँ पे
सीड यूसीड के चीजें रहेंगे। आई विल एक्सप्लेन कैसे क्या क्या लिंक्ड हो सकता है इसके साथ। सेकंड कैटेगराइजेशन इज जीएटी, विच इज दिस GAT, General Aptitude Test, is the second categorization. Third categorization is Part B, which is sketching, design and those things. तो ये हो गया 3 कैटेगरीज जिसको तुम एक बकेट बोल सकते हो, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। पार्ट ए, GAT एंड पार्ट बी, ये 3 कैटेगराइजेशन। अगर इन तीनों को कैटेगराइज करके प्रिपेयर करोगे, काइंड ऑफ इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ। नाउ ये तीनों पार्ट है क्या, किस तरीके से लिंक है उसको समझते हैं। स्टार्टिंग विथ first part, which is part A, which is nothing but visual aptitude, जो ज्यादातर टाइम सीड यूसीड एनआईडी में पूछते हैं। इट इज रियली वेरी लेस इन एनआईडी एंड निफ्ट में तो होते ही नहीं है, उनका पैटर्न है ही नहीं है। ठीक है, ये लिंक किसके साथ है, जैसे मैंने बोला इट इज लिंक्ड विथ पार्ट ए प्राइमरली एंड लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन इज देयर इन एनआईडी। तो इसका कनेक्शन इसके साथ भी है थोड़ा। सो दैट्स व्हाट पार्ट ए इज। अगर तुम पार्ट ए का सिलेबस कंप्लीट करते हो तो काइंड ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सीड यूसीड, पार्ट ए एंड लिटिल बिट ऑफ एनआईडी एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओगे। मूविंग टू द सेकंड सेक्शन व्हिच इज जीएटी। अगर तुम जीएटी वाले चीजें जो भी सिलेबस जीएटी के सिलेबस है उनको अगर प्रिपेयर करके कंप्लीट करके रखोगे, यू आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर प्राइमरली निफ्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा ये सबसे रिलेवेंट है निफ्ट के लिए। दूसरा, दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ रिलेवेंट टू एनआईडी, नॉट टू मच बट हाँ लिटिल बिट ऑफ रिलेवेंट टू एनआईडी एंड वेरी लेस हार्डली 1 or 2% सपोर्ट यू विल बी गेटिंग और हेल्प यू विल बी गेटिंग फ्रॉम जीएटी टू सीड यूसीड के पार्ट ए के लिए, राइट। सो ये हो गया सेकंड सेक्शन। नाउ मूविंग टू द थर्ड सेक्शन व्हिच इज डिजाइन एंड स्केचिंग पार्ट बी। ठीक है, अगर इसको तुम करते हो, स्केचिंग एंड डिजाइन को करते हो, it is kind of something which will be contributing for all these 3 exams। अगर तुम इसका तैयारी करते हो, स्केचिंग एंड डिजाइन, ये तीनों एग्जाम्स के लिए कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि ये एग्जाम ही डिजाइन एंड स्केचिंग के अराउंड है। तो काइंड ऑफ अगर तुम इसका तैयारी कर लेते हो तो it helps for this all these 3 exams, CEED, UCEED, NID and NIFT। With this I hope you got a little bit of understanding कि कैसे ये तीनों सेक्शन, अगर preparing for these 3 sections will help you to crack this exam। but ये तो बस मैंने overall दिया है। now let's move to the section where I am giving the detailed syllabus that you can make a note of it or maybe screenshot लेके रख सकते हो and खुद के पास store कर सकते हो, like okay these are the things that I should at least complete to prepare myself for this kind of exams। ठीक है, let's start with the first section which is part A। These are the kind of areas that visual aptitude या फिर पार्ट ए सेगमेंट होल्ड करता है। अगर तुम पार्ट ए के लिए प्रिपेयर तुम्हें करना है, सिलेबस ये है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिलेबस, अपने पास रख सकते हो, और यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड मेक इट नोट, इट इज अप टू व्हाटएवर यू डू। बट फ्रॉम माय साइड मैंने ये चीज एक्सट्रैक्ट करके निकाल के रखा। इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ, इफ यू गिव ए ग्लिम्स तो तुम्हें पता चलेगा कैसा है, जैसे 3D 2D, mental rotation, perspective view, orthography view, light and shadow rotation, surface counting। so these are the kind of questions that are being asked and इसको kind of और elaborately explain करने के लिए मैं मेरे ही स्टूडेंट्स, मिडनाइट डिजाइन कोर्स के स्टूडेंट्स ने पूरा एक्सट्रैक्ट करके अपने साइड से पूरा अपना अलग अलग सेगमेंट में बनाया हुआ है। सो वहां पर सब रखा हुआ है। ऑल्दो आई कांट शेयर दैट, आई हैव टू टेक परमिशन ऑफ हिम, बट हाँ लाइक ही हैव helped me a lot to categorize the different things that are being asked in CEED, UCEED and visual based aptitude में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछते हैं, उसने उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। So from there I got this entire thing and that's how I have created this list for visual aptitude of part A। Now let's move to the second segment which is GAT, General Aptitude Test। As you know, like General Aptitude Test is primarily for NIFT, although NID and यूसीड सीड में लिटिल बिट ऑफ हेल्प करेंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं। बट हाँ, ये प्राइमरली निफ्ट के लिए, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर निफ्ट देन डेफिनेटली दीज आर द सिलेबस दैट यू शुड कंप्लीट एटलीस्ट बियर मिनिमल। इसके अलावा भी बहुत सारे है चीजें, बट हाँ इतना तो एटलीस्ट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना। दिस इज फॉर निफ्ट जीएटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हो।
एंड अगर किसी को सवाल है कि लाइक इन चीजों को हम कहाँ से पढ़े, तो देयर इज अ बुक बाय आरिहंत, मे बी इन इस वीडियो में आई विल एड अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो उस बुक को ले सकते, इट्स अ निफ्ट बुक। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइन एग्जाम्स, मैंने उस बुक को रेफर किया था, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। बहुत अच्छा बुक है वो, तो तुम देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड सेगमेंट विच इज पार्ट बी, एंड यही एक सेगमेंट है जो सब तीनों एग्जाम्स में काइंड ऑफ इक्वली वैल्यूएबल है। ऑल्दो एनआईडी में ज्यादा है इसका वैल्यू, बट हाँ तीनों एग्जाम्स में इसका वैल्यू काइंड ऑफ बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें डिजाइन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना ही है तो इसे तो तुम मिस नहीं कर सकते, तुम्हें तैयारी करना ही होगा। सो फॉर दैट ऑल्सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 2-3 years। सो उस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ लिस्ट ऑफ सिलेबस मैंने बनाया है, ताकि इनको तो एटलीस्ट तुम देख लो, पढ़ लो, समझ लो, एंड खुद को कंप्लीट कर लो कि ओके दीज आर द थिंग्स लाइक ह्यूमन स्केचिंग में क्या क्या चीजें है, स्केचिंग, कंपोजिशन, स्टोरी टेलिंग में क्या क्या चीजें। ऑल्दो इट इज ह्यूज, बट हाँ यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड थ्रू, और मे बी अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टोर इट फॉर योरसेल्फ, कि बाद में तुम उसको यूज कर पाओ, एटलीस्ट तुम जान पाओ कि ओके मैंने ये चीजें कवर किया हुआ है। सो या दिस इज अबाउट पार्ट बी। नाउ इतने सारे सिलेबस मैंने तो बोल दिया, राइट? अभी एग्जाम भी पास है, यू हार्डली हैव for seed you said you hardly have like around 70 days के आसपास, and for NID और कम दिन है, right? So what I have done, इतने सारे सिलेबस को तुम पढ़ नहीं सकते, so I had thought of like why not to simplify it for you people, ताकि तुम लोग इतने कम टाइम में जो भी चीजें ग्रेस्प कर पाओ वो कर लो, ठीक है? For that let's start with first कि जहां पे ज्यादा टाइम है, जैसे सीड, यूसीड एंड निफ्ट के लिए तुम लोग के पास स्टिल टाइम है, तो आई हाईली रिकमेंड कि जो भी चीजें मैंने अभी तक दिखाया है वीडियो में सिलेबस, तो उन चीजों को एक बार सब गो थ्रू, क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम है। ऑल्दो एनआईडी के लिए टाइम नहीं है, सो फॉर दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड समथिंग। बट हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीड, यूसीड, निफ्ट, एनआईडी भी कर रहे हो आई नो, बट स्टिल अगर ये दो के लिए फिर भी तुम लोग के पास टाइम है, मतलब तुम एक बार जाके उन सब सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, मौका है तुम्हारे पास कंप्लीट करने के लिए। बट इफ आई टॉक अबाउट एनआईडी, अगर एनआईडी के बारे में बात करो तो काइंड ऑफ तुम लोग के पास कम टाइम है, तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ मेंटर टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू पीपल। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दे। तो इवेंचुअली इफ आई मेक इट सिंप्लीफाई, तो इतना समझ में आता है फ्रॉम द पास्ट डिस्कशन दैट आई एम डूइंग कि यहाँ पर पार्ट बी इज मोर वैल्यूएबल कंपेयर टू एप्टीट्यूड एंड ऑल। आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, 10-20 मार्क, 30 मार्क मैक्सिमम, इफ आई कैन रिमेंबर 35 मार्क्स ही मैक्सिमम आया था, 35, उससे ज्यादा तो आया ही नहीं था फॉर पास्ट फ्यू इयर्स। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है नहीं, एंड ऐसा भी नहीं है कि पार्ट ए क्वालिफाई नहीं करोगे तो पार्ट बी नहीं मिलेगा, दे कैलकुलेट इट एज अ होल, ठीक है? तो इतना वैल्यू नहीं है, बट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। थोड़ा बहुत तुम्हें प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत उसका रीडिंग पार्ट है एंड जीएटी का थोड़ा बहुत करना होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लोगे तभी हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम के लिए, एनआईडी के लिए जो सबसे वैल्यूएबल है वो हो गया पार्ट बी, एंड तुम्हें काइंड ऑफ पार्ट बी को ज्यादा एम्फेसाइज देना होगा। बट इफ आई सी पार्ट बी का सिलेबस तो इतने सारे हैं एंड टाइम भी कम है, तो कैसे मैं कवर करूंगा? अगर तुम अभी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई पुराने से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मे बी दिस यू कैन फॉलो के लिए ओके इतना मैंने कर लिया इतना। बट इफ यू आर preparing maybe from past 2-3 weeks या फिर 1 महीना ही हुआ है, तो maybe it might feel little burdens, for which what I have done is I have simplified it little bit। तो थोड़ा मैंने इसको simplify किया है, which is this। इसे देख सकते हो, इसे कैप्चर कर सकते हो, इसे अपना नोट्स बना सकते हो कि लाइक ओके इतना तो मुझे एटलीस्ट करना है बियर मिनिमल, ताकि मैं इस एग्जाम को एटलीस्ट क्वालिफाई कर लूं एंड अच्छा स्कोर गेन करने के लिए ट्राई करूं विद इन दिस short span of time, right? So yeah, this is what the entire syllabus is. Now from my side what I have done is, मैंने लास्ट ईयर भी एक मिडनाइट क्रैश कोर्स बनाया था, इस बार तो मैंने मिडनाइट डिजाइन कोर्स बनाया जहाँ पे 4 months का वी हैव अ रिगरस कोर्स, एंड वो चला, अभी भी चल रहा है, लाइक वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन नेक्स्ट 2 to 3 days, and I am deciding to launch again midnight crash course दिस ईयर, ठीक है? तो ये जो मिडनाइट क्रैश कोर्स है, यहाँ पर
जो भी मैंने डिस्कशंस किया है, सिलेबस को जितना हो सकता है उतना मैंने कवर करने के लिए ट्राई किया है। ये लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था, इस बार भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड अ नोशन पेज, इसका लिंक मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, एंड ऑल्सो आई विल शेयर इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहां से भी देख सकते हो। सो इट हैज ऑल द थिंग्स रिटन, लाइक क्या क्या चीजें मैंने कवर किया, जैसे कोर्स में कितना चीजें रहेंगे, समथिंग लाइक 7 कोर क्लासेस विल बी अवेलेबल, फिर उसके बाद 2 रिव्यू क्लासेस होंगे, एक क्लास गेस्ट लेक्चर को बुलाऊंगा, प्लस डाउट सेशंस होंगे। तो ओवरऑल 10 क्लासेस इज समथिंग व्हाट आई एम टारगेटिंग फॉर दिस क्रैश कोर्स। 10 कोर्स क्लास के साथ साथ आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए बंडल ऑफ टेस्ट, mock test that I have created from my side. मैंने लास्ट ईयर भी क्रिएट किया था, it was the toughest from all the places you would be getting mock test, जितने भी past people knows, ठीक है। इस बार भी मैं और थोड़ा टफ करके एंड मोर एग्जाम रिलेवेंट बना करके मैं रिलीज करने वाला। although those mock tests will be a paid one, but people who will be enrolling in this crash course, for them it will be free, and there will be one free one-on-one session, so that I can understand more better कि like okay तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा है। It won't be multiple, but एक one-on-one session होगा जो भी इस कोर्स में enroll करेंगे। So eventually what you'll be getting is 10 live classes, 10-20 plus mock tests, not just 20 but 20 plus mock tests रहेंगे, review classes होंगे, and one-on-one एक feedback class होगा। So if you want to know about this course, इस Excel इस Notion page को देख सकते हो। So I have detail out everything, class का routine क्या है, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, कब कब कवर करेंगे। So basically there will be 2 batch, this routine is for batch 1, there will be batch 2 का routine जो स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से, ठीक है। सिमिलर होगा, सिमिलर पैटर्न में रहेगा, बट डेट चेंज हो जाएंगे, बट हाँ देयर विल बी दिस बैच 2 का रूटीन भी आएगा। प्लस आई हैव आल्सो मेंशन कि लाइक जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, दीज वर द लास्ट ईयर सीड क्रैश कोर्स, लाइक डिजाइन क्रैश कोर्स, जो मिडनाइट डिजाइन क्रैश कोर्स का students थे who have cracked these exams and got into different design colleges. So I'm really proud of them that they at least have cracked this exam and they have got into colleges. So yes, this is all about, and if you want to enroll this course, link है यहाँ पे, you have to just click on book now, and there will be a form that will be coming up. You have to fill that form and then you will be enroll into that course, and उसका फीस वगैरह डिटेल यहीं पर है, you can just check it out and देख सकते हो, right? So yeah, that's it with this video. I hope syllabus तुम लोगों को पता चला, I hope मेरे जो मैं अभी ओपन करने वाला हूँ वो तुम्हें आइडिया लग गया, and yeah, that's it. And do let me know कि अगर तुम्हें कोई भी इसके अलावा डाउट है, I'm happy to make videos on it. Do share this video, do subscribe my channel, and do like this video. Bye.